Assalamu alaikum. Good evening one and all. Today in this video, I will be continuing with the remaining portion of anemia, which I have already discussed in the previous class. If you have watched that video, you can get the information about epidemiology, introduction, definition, and I also have mentioned the types and classifications, main two broad classifications of anemia. The first one was based on the etiology, that is known as etiopathological classification, and second one was understanding based on the morphological organizations. Okay, so in this video we are going to discuss about the first classifications, that is mainly right in front of you, that is etiopathological, and you can say etiopathophysiological classification. Okay, so video को start करने से पहले I have a small request, please watch this video till the end ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगर वीडियो के एंड के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है, देखने के बाद आपको डाउट लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन द डाउट्स आस्किंग आई विल बी गिविंग यू द आंसर ओके इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि ब्रॉड दो क्लासिफिकेशन है, तो आज इस वीडियो में हम क्लास में हम मेनली पहला वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज मेनली अबाउट द etiopathophysological, ठीक है ना, या we can say etiological, यानी based on the causes, ठीक है, there will be so many causes which can affect this occurrence of which can affect your blood in decreasing the RBC count or RBC level, okay, where RBCs are unable to carry the sufficient oxygen and nutrients in order to maintain the metabolic needs of the cells and tissues. Okay, so I want your full attention so that you can get all the points clearly understood. Okay, so first one is etiopathological. Under that, first one is blood loss. Understanding. So depending on how much the blood is being lost from the body, first one is the acute blood loss. Acute का मतलब होता है कम. Okay, या we can say कम, या we can say few amount of the blood will be lost. Okay, so in that we can give the example like minor accidents. Okay, and we can also give the this one example, GI bleeding, gastrointestinal bleeding. जब भी कभी कभार किसी को भी कोई भी gastrointestinal system का कोई प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्रोइसोफेजियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है या स्टोमक कैंसर होता है, तो उसका सिम्टम होता है मेलेना यानी ब्लड इन स्टूल। ठीक है ना, तो जब ब्लड स्टूल के साथ लॉस होता है तो उस वक्त हम मेनली बोलते हैं, या कहीं पर भी जीआई ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर भी अगर इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है और उसको हम मेनली कहते हैं जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, सो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। सेकंड वन इज क्रॉनिक ब्लड लॉस, यानी क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, सीवियर अमाउंट ऑफ द ब्लड इज बीइंग, या वी कैन से आरबीसीज आर बीइंग लॉस्ट। ठीक है, उसके अंदर मेनली आता है हाइपरमेनोरिया। ओके, हाइपरमेनोरिया का मतलब क्या होता है? हाइपर मीन्स हाई, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग, यानी जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल्स होती हैं, ड्यूरिंग देयर मेंसेस देयर विल बी एनॉर्मस अमाउंट, देयर विल बी सीवियर ब्लड लॉस ड्यूरिंग देयर this one and during their menstrual cycle. Okay, so there will be some pathological causes which may lead to the hypermenorrhea. Okay, there may be PCOS, there may be any other diseases, there may be uterine cancer or any other thing that may lead to this one, that is hypermenorrhea. Okay, next one is the impaired RBC production. What is impaired means altered, यानी change, ठीक है ना, RBC production, ठीक है ना, यानी डिफरेंट RBC जो है ना वो impaired बनना यानी अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है, सो इम्पेयर्ड यानी कम बनता है या अल्टर्ड बनता है या उसका जो फंक्शनिंग में चेंज होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मेनली फर्स्ट थिंग दैट इज एबनॉर्मल बोन मैरो। वेरी गुड, बोन मैरो क्या होता है? ठीक है ना, ये मेनली एक कंपोनेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, एक टिश्यू होता है जो हेल्प करता है ब्लड सेल्स को बनने में, सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ओके, सो उसके अंदर ही अगर हम देखें, फर्स्ट वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज द डैमेज्ड बोन मैरो, जब आपका बोन मैरो जब डैमेज होता है किसी भी कारण, चाहे वो आप लोगों ने कोई ड्रग खाया हो तो ड्रग के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो डैमेज करते हैं, वो हार्म करते हैं इस टिश्यू को, या कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं इसको बोन मैरो डैमेज हुआ। जब बोन मैरो डैमेज हुआ है
तो ये क्या करता है, ये आरबीसी को बनने में हेल्प नहीं करता, यानी बहुत सारे कम आरबीसी बनता है जिसके बाद एनीमिया हो सकता है। ओके, ल्यूकीमिया आपको पता है ये होता है ब्लड कैंसर, ठीक है ना, जिसमें मेनली ज्यादा डब्ल्यूबीसीएस बनती है, ठीक है, यानी ये जो मेनली इफेक्ट करता है ब्लड को, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारा ब्लड डिस्ट्रक्ट या सॉरी बहुत सारा ब्लड ना लॉस होता है या डैमेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैंसर्स, यानी वी कैन से मेटास्टेसिस, वो कैंसर्स, ठीक है ना, जो फैलते हैं, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, फॉर एग्जांपल बोन मैरो के अंदर हम बोलेंगे अगर कोई बोन मैरो कैंसर है, ठीक है ना, तो बोन मैरो की टिश्यू में abnormal cell growth and proliferation, that is mainly the cancer. So if that is metastasized, means if that cancer is spreading, so that may also lead less production of RBCs, okay, by the bone, because bone marrow will be destroying, okay, it will be getting damaged by time by time, okay. Now next one is myelopathesis. What is myelopathesis? What is myelopathesis? It is the formation and synthesis of the immature RBCs, यानी जो इमेच्योर आरबीसी होती है ना, ठीक है ना, वैसे ही बनते हैं, आरबीसी जो है ना वो मैच्योर नहीं बनती है, उनका अच्छे से ग्रोथ या उनका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है, उनके अंदर मटेरियलिस्टिक मैनेजमेंट है वो अच्छे से फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ल्यूकीमिया। व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, तो ल्यूकीमिया के अंदर ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के अंदर मेनली ब्लड कैंसर ही होता है जनरली, अगर हम बोलेंगे यहाँ ब्लड कैंसर, यहाँ बोलेंगे बोन मैरो कैंसर, ठीक है। एंड देन कैंसर इज यू ऑलरेडी नो, एंड कैंसर मींस ओनली abnormal cell growth and proliferation, yeah, abnormal cell growth and proliferation or infiltration of the blood, infiltration of the body cells, okay, so that may lead to the abnormal and unwanted growth, okay. Now next one is, that is B one is essential factor deficiencies, there will be some factors, some substances which will be lost or which will be deficient, or which will be, there will be the insufficiency of these substances or these factors. First one is deficiency anemia, okay, so deficiency of anemia means first thing इसमें आएगा iron deficiency anemia, understanding when you are not consuming much iron or when your body is consuming much iron, okay, so that time, yeah, when it is losing the blood, okay, that time there will be the low amount of the this one what we can say is iron present in your blood. Next one is the vitamin B12 deficiency, that is cobalamin deficiency, okay. So next one is the folic acid. What is folic acid? Okay, it is a one protein mainly which is binded with the hemoglobin, which help us in the protection of the brain cells, which help us in the energy, which gives energy to the brain cells, in, yeah, we can say also nervous system, some nerves, in order to work and function properly, in order to maintain the mental gait as well as body gait, okay. Next one is the anemia in the renal failure. Very good. आप लोगों को पता है वो जो हमारा ये होता है किडनी होता है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है, उसको हम मेनली बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जब रिलीज होता है किडनी से, तो फिर वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, बोन मैरो के अंदर, यानी बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, किस चीज को बनने के लिए, आरबीसीज को बनने के लिए। आरबीसीज का जो है ना अर्ली स्टेज स्टार्ट इनिशियल स्टेज बनने में हेल्प करता है पहले, ठीक है। सो क्या होता है, जब इरिथ्रोपोएटिन किडनी के अंदर बहुत कम है, अगर किडनी डैमेज है, किडनी फेलियर, उसकी वजह से इरिथ्रोपोएटिन कम रिलीज होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी इनहिबिट होगा, ब्लॉक होगा, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द स्टिमुलेशन ऑफ द फैक्टर डिफिशिएंसीज, उसमें मेनली होगा एनीमिया इन क्रोनिक डिजीज, यानी अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ही chronic disease like for example stomach cancer is there, या colon cancer is there, या some diseases which may cause anemia, which may cause inflammation, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के दौरान बहुत सारा सेल्स उधर जाता है, ठीक है ना, और वो सेल्स वहाँ पे डैमेज भी होता है, बर्न भी होता है, एग्जॉस्ट भी होता है, तो जिसके चलते क्या होता है, बहुत सारा आरबीसी कंज्यूम होता है, या उनको उस चीज की वजह से भी वो आरबीसी ना लेस प्रोड्यूस होगा, यानी बॉडी के अंदर बहुत कम रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड, दैट वाज एमपीआर, ओके। थर्ड वन इज द एक्सेसिव आरबीसी प्रोडक्शन, ये सॉरी डिस्ट्रक्शन, जब बहुत सारे आरबीसी लॉस होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मेनली, इसको हम मेनली क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। व्हाट इज हीमो का मतलब होता है ब्लड, एंड लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, अंडरस्टैंडिंग। सो उसके अंदर मेनली क्या होता है, मेनली अगर हम बोलेंगे आरबीसी का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका बाहर वाला जो है एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर, ठीक है ना, ठीक है ना। सो जो कॉर्पस्कुलर एंड जो अंदर का होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल, या उनको हम बोलते हैं इंटरनल या इंट्रा
कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कल हम मेनली आरबीसी को बोलते हैं, ठीक है, जब वो बनती है, ठीक है। सो उसके अंदर मेनली होता है, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, मैकेनिकल दैट इज मार्च हेमोलाइटिक एनीमिया, दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि जब आपका जो ये होता है बोन मैरो है ना, जब वो प्रोड्यूस करता है ना आरबीसी, देयर इज द वीक प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, जब आरबीसी बहुत वीक तरह, बहुत बहुत कमजोर, मतलब बहुत ही टाइम लगता है बनने में, डिलेड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में लीड टू द डैमेज टू दीज आरबीसीज। क्योंकि जब आरबीसी डैमेज, जब आरबीसी बहुत ही डिले करता है, ठीक है ना, तो ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स है ना उनके अंदर आरबीसी जब जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, जब वो बहुत ही स्लो ग्रोथ होगा उन चीज का, तो अल्टीमेटली अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन है, वो आराम से ससेप्टेबल हो सकता है, वो उस पर इन्फेक्ट कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो जिसके चलते हम बोलते हैं मैकेनिकल यानी मार्च हेमोलाइटिक एनीमिया, या वो कैसे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, यानी माइक्रो मतलब जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, तो उनके अंदर कुछ डिजीज, उनके अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से जहां पे जो आरबीसी सर्वाइव नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द केमिकल, केमिकल और फिजिकल इज मेनली रिलेटेड टू, अगर हम बात करेंगे टॉक्सिक, समझ रहा है। तो फिजिकल का मतलब होता है टॉक्सिक, केमिकल का मतलब होता है टॉक्सिन्स, एंड फिजिकल मतलब होता है ऑक्सीजन या एयर। अगर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है, अच्छे से नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से ना, जब ऑक्सीजन मिला ही नहीं, तो वहाँ जो आपके ब्लड बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड हुआ ही नहीं है, तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आरबीसी बनेगा, क्योंकि आरबीसी को प्रोड्यूस होने के लिए, उसको बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का कंजप्शन जरूरी होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज केमिकल, केमिकल मतलब होता है व्हेन समटाइम्स यू आर हैविंग द फूड और यू आर हैविंग द मेडिसिन्स, दे विल बी कंटेनिंग सम टॉक्सिन्स, सम हार्मफुल गैसेस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। So they may destruct or they may destroy or they may damage the RBC membranes, understanding. And next one is इन्फेक्शन, यानी अगर क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी है, ठीक है ना, अगर बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सेप्टिसीमिया हम बोल सकते हैं, यानी देयर इज प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन इन योर ब्लड, तो उसकी वजह से भी वो आपके आरबीसी के साथ अटैच होके वहां पे रिएक्शन करते हैं और वहां पे आरबीसी को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट मीन एंटीबॉडी, दैट इज एसएलई सी। इसका मतलब क्या होता है, एसएलई मींस सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटिक, ओके। सो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेट्स, ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन विच द बॉडीज ओन इम्यून सेल्स, यानी बॉडी का जो अपना इम्यून सेल्स है ना, वो अपने ही बॉडी पर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस, या वो कैन से नर्व डैमेजेस या नर्व डिजीजेस, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, पेरिफेरल नर्व डैमेजेस, ठीक है ना, या पेरिफेरल, या वो कैन से पेरिफेरल, या वो कैन से पेरिफेरल नर्व पैथोलॉजीज। अगर वो नर्व में कोई डैमेज होता है या ब्लड वेसल कोई डैमेज होता है, सो वो क्यों होता है, मेनली कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आपका बॉडी होता है ना, उसका जो अपना खुद का इम्यून सेल्स है ना, वो खुद ही क्या करता है, वो अटैक करता है, अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हाइपर स्प्लीनिज्म। हाइपर स्प्लीनिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपर मींस हाई एंड स्प्लीनिज्म का मतलब होता है, हाइपर मींस हाई यानी ओवर एक्टिविटी ऑफ द स्प्लीन। जो स्प्लीन होता है वो मेनली आपको पता है कि वो ओल्ड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, उनको रिप्लेस करता है, ठीक है ना। और जो नए हैं उनको क्या करता है, उनको मेनली फिल्टर करता है, यानी उनको क्लीन करता है। लेकिन क्या होता है, जो आरबी जब लिवर ये स्प्लीन बहुत तेज फंक्शन करता है ना, तो वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, जल्दी जल्दी ओल्ड सेल्स को भी मेनली किसके साथ लगाता है, न्यू सेल्स के साथ धकेल देता है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से ओल्ड सेल्स न्यू सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ओल्ड सेल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है, जैसे हम बोलते हैं आरबीसी का लाइफ स्पेन है 120 डेज, 120 डेज, जिसको मेनली मेंटेन करता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, जो स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर और किडनी के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है सिस्टम टिश्यूज में। सो वही कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, यानी दिस वन क्या बोलते हैं इसको, डेथ ऑफ द आरबीसी। जब आरबीसी 120 डे होता है वो डेथ होता है उसका। लेकिन मेनली क्या होता है, जब आपका स्प्लीन ओवर एक्टिविटी करता है, वहां पे ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होता है, तो जो आरबीसी फिल्टर, सिर्फ फिल्टर नहीं बल्कि मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज मेनली स्प्लीन के अंदर ही होता है। जब वहां पे स्प्लीन बहुत तेज एक्टिविटी करता है, तो ये जल्दी जल्दी क्या करता है, आरबीसीज को फिल्टर करता है। तो वहां पे कुछ आरबीसी ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जिनका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो मर सकते हैं या डैमेज होता
होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंट्रा कॉर्पस्कुलर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, जो अंदर का होता है ना स्ट्रक्चर, जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है आरबीसी। आपको पता है आरबीसी क्या होता है, उनका शेप होता है डिस्क शेप्ड, अंडरस्टैंडिंग। सो कनकेव डिस्क शेप्ड उनका मेनली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जो है ना स्ट्रक्चर एंड शेप वो चेंज होता है। फर्स्ट वन इज द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जो उनका अंदर वाला जो उनका सरफेस स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर वो चेंज होता है दो तरीके से। एक को हम बोलते हैं हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस, यानी ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है व्हेन द आरबीसीज स्ट्रक्चर और शेप इज चेंज, वो चेंज होता है बाय जिस पर वो कैन से सेफेरिकल, यानी आरबीसी जो है ना वो सेफेरिकल बनती है। और दूसरा होता है ओवेलोसाइटोसिस। ओवेलो का मतलब होता है जो ओवल शेप्ड बनता है, ठीक है ना, या एग शेप्ड बनता है आरबीसी, ठीक है, क्योंकि बट आरबीसी का डिस्क शेप होता है तो उनका शेप चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसके अंदर उनका जो कम्पैक्ट मटेरियल है वो अफेक्ट होता है, वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से आरबीसी अच्छे से काम नहीं करता है या प्रोड्यूस नहीं। नेक्स्ट होता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं मेनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मेनली क्या करता है, जो हेल्प करता है आरबीसीज को मैच्योरेशन होने में, यानी आरबीसीज को अच्छे से मैच्योर होते हैं, यानी काम फंक्शनिंग के लिए होते हैं, एबिलिटी होते हैं उनके मतलब फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए रेडी होते हैं। ये मेनली जो है ना एंजाइम, ये मेनली क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है, ठीक है। ये बाकी सारे जो आरबीसी के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको मतलब कंजुगेटिंग या उसको बनने में मदद करता है। लेकिन जब उसका डेफिशिएंसी होता है ना, तो क्या होता है, जो आरबीसी ना वो इमेच्योर रहती है, वो अच्छे से नहीं बनती है, ठीक है। लास्ट में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर इफ देयर इज द यू कैन सी, अगर हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, बहुत ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन को मेनली बोलते हैं थैलेसीमिया। एंड लास्ट वन इज द हीमोग्लोबिनोपैथीज। इन हीमोग्लोबिनोपैथीज मींस कंडीशन ऑफ डिजीज, यानी अगर थैलेसीमिया, अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में बनता है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे हाइपर एक्टिविटी खुद ही होगा। मैंने पहले ही बोला, ये जो सिप्लिन हाइपर एक्टिविटी करेगा, तो जिसकी वजह से ये आरबीसी या हीमोग्लोबिन दूसरे जो सेल्स है ना उनको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एनीमिया। Okay, so now the second classification is mainly, I have told you, that is based on the morphological features. Morphology is mainly related to the size and shape, or we can say mainly size and number of cells, or we can say amount of cells or amount of blood cells present in the whole blood. Okay, so we can first, before we move into this classification, we must know about that how we have to measure the values of hemoglobin in the blood, okay, by doing the hematocrit test or hemoglobin test, or we can say RBC test, that is, or we can say complete blood count. So first one is mean corpuscular volume, यानी mean corpuscular का मतलब क्या होता है, what is the amount of RBC इन द टोटल ब्लड, यानी टोटल ब्लड में कितना आरबीसी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मीन वॉल्यूम, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी, दैट इज मेनली this one. And next one is the what is the presence of, what is the amount of, what percentage of the hemoglobin is present in the whole blood, that is mainly mean corpuscular hemoglobin. Okay, so under this there are mainly three categories. First one is known as macrocytic, second one is the microcytic hypochromic anemia, and third one is normocytic normochromic anemia. Okay, so first let's take this one, macrocytic. What is macro? Macro means large and cytic means cells. We can say when there is a formation of abnormal large cells, we can say RBCs, understanding in the blood by the bone marrow, that is mainly known as macrocytic anemia. Okay, so in this it will be caused due to the vitamin B12 deficiencies. So that will be mainly the disease will be occurring, that is megaloblastic anemia. मैंने बोला है पहले आप लोगों को पहले क्लासिफिकेशन में कि megaloblastic anemia का मतलब ये होता है कि when abnormal, large and progressive growth of unwanted, and we can say large, that's why I'm telling you macro, large cells are being synthesized from the bone marrow. Okay, जब वो बहुत ज़्यादा
लार्ज होता है, ठीक है। मेनली देयर विल बी एमसीवी विल बी लार्ज देन 94% एंड एमसीआईसी मींस हीमोग्लोबिन कितना होगा 31% से ज्यादा, और जो एमसीवी है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम वो 94 से ग्रेटर होगा, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी यानी अगर आप फोलिक एसिड कंज्यूम नहीं करते हो या आपकी बॉडी में कभी कभार हेमोरेज हुआ है या एक्सीडेंट या कुछ भी कॉज हो जिसकी वजह से फोलिक एसिड लॉस हो या आप कंज्यूम नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल डीएनए सिंथेसिस। जब डीएनए सिंथेसिस होता है, अगर वो एबनॉर्मल है, अच्छे से डीएनए नहीं बनता है, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से नहीं बनता है प्रोसेसिंग में, उसकी वजह से भी ये लॉस हो सकता है, ठीक है। लास्ट में कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर जैसे हम ब्रीथिंग मैनली, ठीक है ना, सिस्प्लेटिन, ठीक है ना, मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स वी आर गोइंग टू गिव, ओके। सो जो भी हम कैंसर एंटी कैंसरस ड्रग देते हैं ना, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इनहिबिट द कैंसर सेल्स mainly we are going to when we are giving the chemotherapy, that giving chemotherapy drugs that can lead to the reduction in the increase in the number of RBCs, or we can say hemoglobin, or we can say hematocrit. Okay, so this was about the first. Next one is the microcytic hypochromic anemia. What is microcytic? Microcytic means small, the RBC will be small, and then next one is the hypochromic. Hypochromic means lower, yeah, okay, less than normal. Anemia means loss of blood only, okay. So we can say then MCV, that is mean corpuscular volume, will be less than 80 because the normal is from 80 to 94, understanding, yeah, we can say 80 to 92 इतना नॉर्मल होता है, ठीक है, पूरा ब्लड के अंदर जो आरबीसी का कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज एमसीआईसी, वो होगा, ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन 31 बिकॉज मैंने बोला है इफ यू कैन टर्म कैन सिंपली दिस टर्म माइक्रो मीन्स स्मॉल, हाइपोक्रोमिक मीन्स स्मॉल। स्मॉल सेल साइज, जो सेल होता है ना उसका साइज भी कम होगा और जो उसका नंबर होगा वो भी कम हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन भी कम होगा। वो क्यों होता है? अगर आयरन डेफिशिएंसी है, यानी अगर आपने आयरन कंज्यूम नहीं किया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी हो सकता है। एंड माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। द लास्ट वन इज द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली जो आरबीसी जो बनता है ना वो नॉर्मल से थोड़ा कम बनते हैं, स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल, ये नॉर्मल से कम बनता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 82 to 92 विल बी द वॉल्यूम, ओके। एक्चुअली मैंने पहले ही बोला यहाँ पे 94 एक्चुअली नॉर्मल होता है, लेकिन 94 से कम, थोड़ा सा कम बनता है, ठीक है ना, फेवर देन द नॉर्मल, ओके। एंड जो एमसीएससी होता है वो होता है लेस देन 30, यानी 30 से कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉर्मोसाइट। यानी इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है ना उनका साइज, शेप, वो सब कुछ सेम ही रहता है, सिर्फ क्या होता है एक्चुअली किसी भी वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से वो क्या होता है एक्चुअली बॉडी के अंदर ही कुछ कंडीशन होता है, कोई डिजीज या कोई भी स्टेट ऑफ द बॉडी होता है जिसकी वजह से उनका साइज ये कम होता है, थोड़ा सा कम, स्लाइट कम होता है, ठीक है। तो उनके अंदर मेनली होता है ब्लड, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो वो तो कम होगा ही, प्रेगनेंसी के दौरान भी, ठीक है ना, प्रेगनेंसी जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान भी होती है। देन हीमोलाइटिक एनीमिया, मैंने पहले ही पढ़ा आपको हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें मेनली, ठीक है ना, जो ये होता है जो मैंने वो थैलेसीमिया, ठीक है ना, वो कैन से सिकल सेल एनीमिया, उनसे भी हो सकता है, दिस टाइप भी हो सकता है उनकी वजह से, ओके। देन एपिलेस्टिक एनीमिया, मैंने पहले ही बोला एपिलेस्टिक एनीमिया होता है मेनली बोन मैरो डिसऑर्डर, यानी बोन मैरो डैमेज या बोन मैरो कैंसर, ओके, जिसकी वजह से जो आरबीसी है ना वो या तो वो बने हुए होते हैं नॉर्मल, लेकिन फिर बनने के बाद वो डिस्ट्रक्शन होता है उनका और वो नॉर्मल से कम रहते हैं। लास्ट वन इज किडनी डिजीज, पहले ही मैंने बोला है किडनी के अंदर या लिवर, किडनी के अंदर जो होता है मेनली इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है ना, जब इरिथ्रोपोएटिन अच्छे से सिक्रेट नहीं होता है तो ये क्या करता है, वो लेस स्टिमुलेशन देता है किसको, बोन मैरो के। तो बोन मैरो भी क्या होता है, अगर वो सेल्स बनाया भी होगा ना तो वो भी डिस्ट्रक्ट होता है, डैमेज होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द today's class. I hope you have understood about these two classifications which I have. Okay, so this was all about today's class in which we have discussed about two classifications, ठीक है ना। हमने देखा है क्लासिफिकेशन 2 कि कैसे, ठीक है ना, एनीमिया एक्चुअली होता है, उसका टाइप कितना होता है, उसके कितने किस्म होते हैं, एग्जाम कितने होते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत नॉलेज हुआ होगा एनीमिया के बारे में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं।
ठीक है ना। सो कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट करो, उसी हिसाब से मैं आपको डाउट क्लेरिफाई करूँगा, ठीक है। और लास्ट में मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है, फ्रेंड्स में, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच important for the students who are mainly BSc nursing and GNM nursing, and as far as the examination point of view is concerned, this is going to be very much important, this topic, okay. So sometimes they might ask this question for 10 marks, okay, so you must read this and you must study about this, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी इसका जो हाफ पोर्शन है, ठीक है ना, वो मैंने डिस्कस करेंगे। तो तब तक दीजिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।